السلام علیکم۔ آج ہم جماعت ہشتم کا چھٹا سبق مادے کی تشکیل کمپوزیشن آف میٹر پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم نے ایک بیکر میں کچھ برف کے ٹکڑے لیے۔ یہ برف کے ٹکڑوں کو ہم مائع حالت میں آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر اسی مائع کو ہم حرارت دیتے ہیں تو یہ گیس میں منتقل ہو جاتا ہے اور بھاپ بن کر اڑنے لگتا ہے۔ یعنی مادے کی تین حالتیں ہیں: ٹھوس جو ہم نے برف کی شکل میں لیے، اسی طرح مائع جو پانی کی شکل میں لیے، اسی طرح گیس جو ہمیں بھاپ کی شکل میں حاصل ہوئی۔ آئیے تجربہ کرتے ہیں۔ ایک بڑے منہ والے شفاف پلاسٹک کے مرتبان میں رائی کے کچھ دانے ڈالتے ہیں۔ بڑے غبارے کے درمیانی حصے میں سوئی کی مدد سے لمبی ڈوری پرو کر پکی گاٹھ لگاتے ہیں۔ یہ ربری پردہ مرتبان کے منہ پر ربر بینڈ کی مدد سے تان دیتے ہیں۔ یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ڈوری مرتبان کے باہر ہو۔ اب مرتبان کو الٹا کر کے پردے کو پہلے آہستہ آہستہ حرکت دیتے ہیں۔ ہم ڈوری کو آہستہ آہستہ اوپر نیچے کرتے ہیں تو رائی کے دانے حرکت نہیں کرتے۔ اسی طرح ہم پردے کو قدرے زور سے ڈوری کی مدد سے حرکت دیتے ہیں تو رائی کے بہت کم دانے حرکت کرتے ہیں۔ اگر ہم ڈوری کو بہت زیادہ زور سے اوپر نیچے حرکت دیتے ہیں تو رائی کے سب دانے زور سے حرکت کرتے ہیں۔ اس تجربے میں ہم پردے کو اوپر نیچے کر کے ہوا کے ذریعے رائی کے دانوں کو کم یا زیادہ توانائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے رائی کے دانوں میں حرکت نظر آتی ہے۔ بالکل اسی طرح کی حرکت ٹھوس، مائع اور گیس، ان تینوں حالتوں میں بھی مادوں کے ذرات میں ہوتی ہے۔ مادے کے ذرات جوہر یا سالمہ کے درمیان بین سالماتی قوت کام کرتی ہے۔ اس قوت کی صلاحیت کے مطابق ذرات میں حرکت ہوتی ہے۔ یہی اصول ٹھوس، مائع اور گیس تینوں کے لیے ہے۔ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے ایک ٹھوس پلیٹ لی ہوئی ہے۔ ٹھوس میں بین سالماتی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ٹھوس کے ذرات ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں اور مقررہ جگہ پر قائم رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ٹھوس کو مقررہ شکل اور حجم حاصل ہے، اور اسی طرح اسے زیادہ کثافت اور سختی کی خاصیت حاصل ہے۔ اسی طرح اگر ہم مائع لیتے ہیں تو مائع میں بین سالماتی قوت اوسط درجے کی ہوتی ہے، جو ذرات کو مخصوص جگہ پکڑ کر رکھنے کے لیے نہ کافی لیکن ان کو یکجا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مائع کو ایک مخصوص حجم اور سیلانیت کی خاصیت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے مائعات کی شکل مستقل نہیں ہوتی، یہ جس برتن میں ہوں اس برتن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح گیس کا ایک غبارہ لیا گیا ہے۔ گیسوں میں بین سالماتی قوت بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گیس کے ذرات آزادانہ حرکت کرتے ہیں اور دستیاب ہونے والی پوری جگہ کو گھیر لیتے ہیں۔ اسی لیے گیس کی کوئی مخصوص شکل اور مخصوص حجم نہیں ہوتا۔ مادے کی جماعت بندی۔ اس طریقے میں مادے کی کیمیائی تشکیل کا معیار استعمال کیا جاتا ہے۔ مادے کے مہین ترین ذرات ایک جیسے ہیں یا مختلف، اور وہ کس شے سے بنے ہیں۔ اس بنا پر مادوں کو تین قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے: ٹھوس، مائع اور گیس۔ آئیے اب مادے کی قسمیں دیکھتے ہیں۔ مادے کی تین قسمیں ہیں: پہلا عنصر، دوسرا مرکب اور تیسرا آمیزہ۔ عناصر۔ عناصر کے مہین ترین ذرات میں ایک ہی قسم کے جوہر ہوتے ہیں، جیسے آکسیجن کے ہر سالمے میں آکسیجن کے دو جوہر جڑی ہوئی حالت میں ہوتے ہیں۔ عناصر میں مادے کے جز بذات خود عنصر ہوتا ہے۔ عنصر کے تمام جوہر یا سال میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ عنصر میں جوہر کیمیائی بندش سے جڑے ہوتے ہیں۔ مختلف عناصر کے جوہر یا سالمات مختلف ہوتے ہیں۔ مرکب۔ مرکب کا مہین ترین ذرہ یا سالمہ دو یا دو سے زیادہ قسم کے جوہر ایک دوسرے سے مل کر بناتے ہیں، جیسے پانی۔ مرکب کے مادے کا جز ایک ہی اور وہ بذات خود مرکب ہے۔ مرکب کے تمام سالمے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مرکب کے سالموں میں موجود جوہر
दो या ज़्यादा किस्मों के और एक दूसरे से कीमियाई बंदिश से जुड़े होते हैं। मुरक्कब में मौजूद अनासिर का तनासुब मुतय्यन होता है। मुरक्कब की खुसूसियात उसके अज़्ज़ाए तरकीबी से मुख्तलिफ होती है। आमेज़ा, आमेज़े में छोटे से छोटे ज़र्रे में दो या ज़्यादा अनासिर मुरक्कब के जौहर या सालमात होते हैं, जैसे पीतल में तांबा और जस्त है। आमेज़े के अज़्ज़ा के जौहर एक दूसरे से मुख्तलिफ कीमियाई बंदिश के ज़रिए जुड़े हुए नहीं होते। आमेज़े के अज़्ज़ा का तनासुब गैर मुतय्यन होता है। आमेज़े में उसके अज़्ज़ाए तरकीबी की खुसूसियात बरकरार रहती है। पानी एक मुरक्कब। खालिस पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन अनासिर के कीमियाई मिलाप से बनने वाला एक मुरक्कब है। पानी के ज़राए जो भी हों, इसमें मौजूद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अनासिर के वज़न का तनासुब 8:1 ही रहता है। हाइड्रोजन ये खुद जलने वाली गैस है, जबकि ऑक्सीजन जलने में मदद देती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसी शक्ल में हैं, जिनकी कीमियाई तरकीब से बनने वाला मुरक्कब यानी पानी माए शक्ल में है, जो न खुद जलता है न जलने में मदद देता है, बल्कि इसके बरक्स आग बुझाने में मदद करता है। अंसर की किस्में। आइए अंसर की किस्में टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स समझते हैं। ये समझने के लिए हमने एक लोहे की कील ली है, इसी तरह तांबे का तार लिया है और एक एल्युमिनियम का तार लिया है और कोयला लिया हुआ है। जब हम सैंड पेपर की मदद से लोहे की कील को घसते हैं तो कील चमकने लगती है। इसी तरह जब तांबे के तार को सैंड पेपर की मदद से घसा जाता है तो तार चमकने लगता है। बिल्कुल उसी तरह एल्युमिनियम के तार भी चमकता है। लेकिन जब हम कोयले को सैंड पेपर की मदद से घसते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह हम लोहे की कील को हथौड़ी की मदद से ज़र्ब लगाते हैं तो वो टेढ़ी हो जाती है। अगर तांबे के तार को भी हथौड़ी की मदद से ज़र्ब लगाया जाए तो वो टेढ़ा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर एल्युमिनियम के तार को भी हथौड़ी की मदद से ज़र्ब लगाया जाए तो वो टेढ़ा हो जाता है। और अगर हम कोयले को हथौड़ी की मदद से ज़र्ब लगाते हैं तो वो टूट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम इनको सैंड पेपर की मदद से घसने की वजह से इनमें चमक आई और इन पर हथौड़ी से ज़र्ब लगाई गई तो ये लचक गए। लेकिन कोयला जो कार्बन का बना हुआ है, इस पर ना ही सैंड पेपर के घसने का असर हुआ और ना ही इसमें कोई लचक आई, बल्कि ये टूट गया। आपने देखा कि अनासिर में चमक, वर्क पजीरी, फूटकपन जैसी मुख्तलिफ तबई खुसूसियात हैं। इनकी बुनियाद पर अनासिर की जमात बंदी की जाती है। इब्तिदा में अनासिर को धात और अधात इन दो किस्मों में तकसीम किया गया। मज़ीद कई अनासिर की दरियाफ्त होने के बाद अंसर की एक और किस्म धातनुमा का तस्वुर पैदा हुआ, जिसके बारे में मज़ीद मालूमात हम धात और अधात ये सबक में हासिल करेंगे। अनासिर की जमात बंदी। अनासिर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले धात, दूसरा हिस्सा अधात और तीसरा हिस्सा धातनुमा। मुरक्कब की किस्में। आइए मुरक्कब की किस्में समझने के लिए एक तजुर्बा करते हैं। इस तजुर्बे में हमें एक तिपाही, तबखीरी प्याली और एक बर्नर की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह काफूर लेते हैं, चुनखड़ी लेते हैं, धोने का सोडा, नीला तोतिया, शक्कर और यूरिया लेते हैं। सबसे पहले हम तिपाही पर तबखीरी प्याली रखते हैं और उसमें थोड़ा काफूर डालते हैं। बर्नर की मदद से 5 मिनट गर्म करने पर हम मुशाहिदा करते हैं कि काफूर से भाप निकलना शुरू हो जाती है और आखिर में काफूर ख़त्म हो जाता है और प्याली में काफूर का कोई भी हिस्सा या दूसरी कोई चीज़ बाकी नहीं बचती। इसी तरह से हम तबखीरी प्याली में चुनखड़ी लेकर गर्म करते हैं और मुशाहिदा करने पर हमें मालूम होता है कि तबखीरी प्याली में रखी हुई चुनखड़ी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह हम बारी बारी धोने का सोडा, नीला तोतिया, शक्कर और यूरिया गर्म करते हैं और उसका मुशाहिदा करते हैं।
तेज़ हरारत देने पर कुछ मुरक्कबात से बाक़ियात मिलता है, जबकि कुछ मुरक्कबात से बाक़ियात नहीं मिलता है, या एक काली शय मिलती है। ये काली शय बुनियादी तौर पर कार्बन से बनी होती है। अगर इस मुरक्कब को हवा में तेज़ आंच पर गर्म किया जाए तो ऑक्सीजन के साथ मिलाप होकर एक गैसी शय तैयार होती है और नामुकम्मिल एहतिराक पर काले रंग का कार्बन बाकी रह जाता है। ऐसे मुरक्कबात को नामियाती मुरक्कबात या कार्बनी मुरक्कबात कहते हैं। निशास्ता प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन मिसाल पेट्रोल, खाना पकाने की गैस जैसे मायात नामियाती मुरक्कबात से बने होते हैं। काफूर, शक्कर, ग्लूकोज और यूरिया नामियाती मुरक्कबात हैं। इसके बरक्स जिन मुरक्कबात को तेज़ हरारत देने पर उनकी तहलील होकर बाक़ियात दस्तयाब होता है, उन्हें गैर नामियाती मुरक्कबात कहते हैं। नमक, सोडा, जिंक, नीला तोतिया, चुनखड़ी ये गैर नामियाती मुरक्कबात हैं। मुरक्कबात के सालमे में मुख्तलिफ जौहर कीमियाई बंदिशों से जुड़े होते हैं। आमेज़े की किस्में। आइए आमेज़े की किस्में समझते हैं। यहाँ पर हमने 3 बीकर लिए। पहले बीकर में कुछ रेत और पानी डालते हैं, दूसरे बीकर में नीला तोतिया और पानी डालते हैं, और इसी तरह तीसरे बीकर में नीला तोतिया और रेत डालते हैं। अब तीनों बीकरों में मौजूद अशिया को अच्छी तरह हिलाते हैं। हम देखते हैं कि रेत और पानी दोनों मिलाकर एक ही जैसा दिखने वाला धुंधला पानी बनाते हैं। इसी तरह नीला तोतिया पानी में मिलकर पानी को नीला कर देता है, जबकि तीसरे बीकर में मौजूद नीला तोतिया और रेत दोनों एक दूसरे में मिलते हैं, लेकिन इसमें नीले तोतिए का रंग और रेत का रंग नजर आता है। यकसा नजर आने वाले माए के हिस्से को मरहला फेस कहते हैं। जब आमेज़े के तमाम अज्जा मिलकर एक ही मरहला तैयार करते हैं, तब उसे मुत्तजानिज़ आमेज़ा कहते हैं। जैसा कि पहले बीकर में रेत और पानी दोनों ने मिलकर धुंधला पानी बनाया, ये मुत्तजानिज़ आमेज़ा हुआ। जब आमेज़े के 2 अज्जा 2 या ज़्यादा मरहलों में तकसीम होते हैं, तब इसे गैर मुत्तजानिज़ आमेज़ा कहते हैं। आइए एक तजुर्बा और करते हैं। एक बीकर में नमक और पानी का महलूल लेते हैं, उसके सामने एक तख्ती रखते हैं और एक लेज़र लाइट की रोशनी नमक और पानी के महलूल से गुजारते हैं। हम मुशाहिदा करते हैं कि लेज़र लाइट की रोशनी नमक और पानी के महलूल से गुजरकर सीधा सामने वाली तख्ती पर हमें नज़र आती है। इसी तरह दूसरे बीकर में लकड़ी के भूसे और पानी का महलूल लेते हैं और यही अमल दोहराते हैं। एक लेज़र लाइट की मदद से उसमें से रोशनी गुजारने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि रोशनी बीकर के सिरे तक पहुंचती है, जबकि लकड़ी के भूसे और पानी के महलूल में से आर पार नहीं गुजरती। इसी तरह तीसरा बीकर में दूध और पानी का महलूल लेते हैं और लेज़र लाइट की मदद से रोशनी गुजारते हैं, और हम मुशाहिदा करते हैं कि ये रोशनी दूध के महलूल में से धुंधली नज़र आती है और तख्ती तक नहीं पहुंचती। इन तजुर्बात के ज़रिए हमें मालूम हुआ कि कुछ आमेज़े शफाफ होते हैं, जैसे नमक के पानी का महलूल। कुछ आमेज़े नीम शफाफ होते हैं, जैसे दूध के पानी का महलूल। इसी तरह कुछ आमेज़े गैर शफाफ होते हैं, जैसे लकड़ी के भूसे और पानी का महलूल। महलूल 2 या ज़ायद अशिया के मुत्तजानिज़ आमेज़े को महलूल कहते हैं। तजुर्बे में पहले बीकर में पानी और नमक इन दोनों अशिया का आमेज़ा तैयार हुआ, इसको नमक का महलूल कहते हैं। महलूल में जो शय सबसे ज़्यादा मिकदार में होती है उसे मुहल्लिल कहते हैं, और मुहल्लिल की बनिस्बत कम मिकदार में जो शय होती है उसे मुनहिल कहते हैं। मुनहिल के मुहल्लिल में हल होने से महलूल बनने के अमल को तहलील कहते हैं। मौल्लिका पानी और भूसा इन 2 अशिया से गैर मुतजानिज़ आमेज़ा तैयार होता है। ये माए और ठोस का आमेज़ा है। माए और ठोस के इस गैर मुतजानिज़ आमेज़े को मौल्लिका कहते हैं। मौल्लिका में ठोस के ज़र्रात का कुत्र 10 क़ुव्वत -4 मीटर से ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें से रोशनी का इनेकास नहीं होता।
इसी तरह आम तकतीरी कागज पर ये ठोस ज़र्रात की शक्ल में मौजूद रहते हैं और अमल तकतीर में माए और ठोस अज्जा अलहदा होते हैं। लसूनत, बीकर में पानी और दूध का आमेज़ा नीम शफाफ है, यानी इस आमेज़े की सतह पर रोशनी डाली जाए तो इनेकास होकर रोशनी का कुछ हिस्सा जज्ब हो जाता है और कुछ हिस्सा वापस पलट जाता है। क्योंकि गैर मुतजानिज़ आमेज़े में पानी के मरहले में दूध के मरहले के बारीक ज़र्रात हर जानिब बिखरे हुए होते हैं और इन ज़र्रात का कुद्र तकरीबन 10 कुव्वत -5 मीटर होता है। ऐसे गैर मुतजानिज़ आमेज़े इस किस्म को लसूनत कहते हैं। अमल तकतीर करके इन्हें अलहदा नहीं किया जा सकता। दूध बजाते खुद एक लसूनत है। सालमी ज़ाब्ता और गिरफ्त। मुरक्कब में अनासिर का तनासुब मुतय्यन होता है। मुरक्कब के सालमे में अनासिर के जौहर मखसूस तादाद में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके एक सालमे में कौन कौन से अनासिर के कितने जौहर हैं, ये सालमी ज़ाब्ते की मदद से दिखाए जाते हैं। सालमी ज़ाब्ते में तमाम अनासिर की अलामत और हर अलामत के नीचे उस जौहर की तादाद के बारे में मालूमात शामिल होती है। जौहर की साख्त में हमने देखा कि जौहर के पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे मदार में 18 और चौथे मदार में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल इसी ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके भी सालमी ज़ाब्ते बनाए जाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में एक ही मदार है और उसमें एक ही जौहर है। इसी तरह हम ऑक्सीजन के जौहर का मुशाहिदा करते हैं और देखते हैं कि ऑक्सीजन के दूसरे मदार में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि दूसरे मदार में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन और कम से कम भी 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसीलिए ऑक्सीजन अपने आखिरी मदार के 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मिल करने के लिए हाइड्रोजन के साथ कीमियाई बंदिश करता है। अब ऑक्सीजन के आखिरी मदार में 7 हो गए, वो इसी तरह हाइड्रोजन के दूसरे सालमे से कीमियाई बंदिश करता है। इस तरह H2O पानी का सालमी ज़ाब्ता बनता है।